تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب، قاری قرآن عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب، پروفیسر نوید الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ، خطیب پاکستان، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ ان پھولوں کے ساتھ آپ کے درمیان تشریف آوری ہو گئی ہوگی، آپ کے درمیان جلوہ فروز ہے، آپ ان کی زیارت کریں۔ ایک ایک بچہ یہ پیغام لے کے آئے مسئلے کی حقہ کا، ایک ایک خطیب یہ پیغام لے کے آئے۔ پیغام کیا ہے؟ یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے، مدحت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ امم سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور پھر جلا دو مجھے، اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے گا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے۔ ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک، ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی مصطفیٰ 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 کی آواز آئے گی، مصطفیٰ مصطفیٰ کی صدا آئے گی۔ ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا پروفیسر نوید الرحمان صاحب کو ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، ہتھانو چاکے لانا یار، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا نوید الرحمان صاحب اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ، اوے بیٹا، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوست احباب، بڑی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، میں اپنی بات کو انتہائی زیادہ مختصر کروں گا، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ذرا آپ نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے وہ 3 شرطیں بیان کروں گا جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے عمل قبول کرتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ بھی پڑھایا ہے، گلا بھی بالکل خراب ہے، ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی آواز ذرا اونچی کر۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت چاہتے ہیں پھر عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، اور عمل کی قبولیت کی جو دوسری شرط ہے بس اس کے لیے اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا چاہیے، اور
اگر عمل کی قبولیت چاہتے ہو پھر اعمال اپنے طریقے کے مطابق نہ کیے جائیں، بلکہ ہر کام کے اندر امام کائنات علیہ السلام کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ اگر یہ شرائط پوری ہو جائے پھر میرا اللہ انسان کے ہر عمل کو قبول کرے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید والا، ذرا سارے بولو عقیدہ، ادھر والے بھی بولو عقیدہ توحید والا۔ اللہ ایک ہے۔ میں کوئی آج آپ کو کوئی زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کروں گا، بس آپ کو ایک سبق سکھانا ہے۔ اللہ ایک ہے، سارے بولو اللہ۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، میرے اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور سارے بولو میرے اللہ کی صفات کے تقاضوں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرا رب اگر اتنی بات کہہ دیتا، آواز پہلی جگہ تک، اگر میرا رب یہ کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں، ہمیں یقین آ جانا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ میرے رب نے اگر اپنی توحید پر بھی مہر لگوائی ہے تو کالی کملی والے کی لگوائی ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کس سے بے نیاز ہے؟ اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بے نیاز ہے، اللہ بیوی سے، بچوں سے، خاندان سے، قبیلے سے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیوں بے نیاز ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، میرا رب بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا اور میرے رب سے بھی آگے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دکن سے لے کر پورب تک، ساری کائنات کا چکر لگا لیا جائے میرے رب کے برابر کوئی ذات ہو سکتی نہیں۔ میرے رب کا یہ تعارف۔ اور میرا رب کون ہے؟ میرے رب کا تعارف کیا ہے؟ کائنات والوں، اگر میرے رب کا تعارف کرنا ہو پھر دنیا کے اندر دوری کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رات کو تھک ہار کے اپنے بستر پہ آ کے لیٹنے لگو اور تمہارے ہاتھ کے اندر دودھ کا ایک گلاس تھما دیا جائے، اتنی بات پہ غور کیا کرو یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، تمہیں اپنے مالک کی پہچان ہو جائے گی۔ فرمایا بین فرس و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین، اے کائنات والو میرا رب وہ ہے جس نے گائے بھینس اور بکری کے پیٹ کے اندر انسان کے پینے کے لیے دو بدبودار مادوں کے درمیان سے خوشبودار دودھ کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ ایمانداری سے بتلانا، یہ ماں جو رب نے ایک نعمت بنائی ہے، میرے رب نے دودھ کے انتظام کر دیے، گائے بھینس اور بکری کے پیٹ کے اندر بدبودار مادوں کے درمیان میں سے خوشبودار دودھ کا چشمہ جاری کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اور میرا رب کون ہے؟ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ رعد میں میرے رب نے اعلان فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کائنات والو میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے تو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ
इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर स्तूनों के खड़ा करने वाला कौन है? अल्लाह। और मेरे रब की जात क्या जात है, मेरे रब का तारफ क्या है, जिसने सिर्फ कायनात को बनाया ही नहीं बल्कि सारे बोलो कायनात के निजाम को चलाने वाला भी कौन है? अल्लाह। एक दफा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनका एक दाहरिये के साथ, कम्युनिस्ट के साथ मुनाजरा तय पा गया। वो कहने लगा, इमाम साहब, कायनात को कोई बनाने वाला भी नहीं और चलाने वाला भी नहीं। इमाम साहब फरमाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, कायनात को कोई बनाने वाला भी है, कोई चलाने वाला भी है। बहस मुबासे का वक्त और जगह का तयन हो गया। वो दाहरिया वक्त से पहले पहुंच गया। इमाम साहब देर से आए। वो कहने लगा, इमाम साहब आप बतलाओ लेट क्यों आए हो? इमाम साहब फरमाने लगे, बात यह है, जब मैं तेरी तरफ चल के आ रहा था, मेरे और तेरे दरमियान में एक दरिया हायल था। मैंने देखा साहिल समंदर पर कश्ती नहीं थी। मैंने देखा एक दरख्त कट गया, उसके तख्ते बन गए, लेकिन उसको बनाने वाला नहीं था, उसकी कश्ती बन गई। मैं उस कश्ती पे सवार हो गया और फिर उसको चलाने वाला मल्लाह भी नहीं था। कश्ती मुझे खुद ब खुद पार ले आई है। वो दाहरिया कहने लगा, इमाम साहब आप कैसी अकल से गिरी हुई बातें कर रहे हैं? एक कश्ती बनाने वाले के बगैर कैसे बन गई और मल्लाह के बगैर कश्ती कैसे चल गई? मेरी ये अकल नहीं मानती। इमाम साहब ने आगे से जो जवाब दिया, शेखुपुरा के रहने वालों, काबे के रब की कसम है, अगर उस जवाब को सोने के पानी के साथ लिख दिया जाए फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। इमाम साहब ने जवाब दिया, वो अकल के अंदर, अगर कश्ती किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती और चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकती, इतना बड़ा कायनात का जो निजाम है वो किसी चलाने वाले के बगैर चल नहीं सकता, बनाने वाले के बगैर बन नहीं सकता। कायनात को बनाने वाला भी अल्लाह है और कायनात के निजाम को चलाने वाला भी मेरा अल्लाह है। ये मेरे रब का तारफ है। और इकबाल तड़प गया। इकबाल ने कहा था, मन्नत क्यों मांगते हो औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बतला तो सही और काफरी क्या है। मेरे आका ने यही ऐलान किया था। आका कोहे सफा पे खड़े हुए और फरमाया, मक्का वालों, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे जमा हो गए। मेरे आका की जब ये बात सुनी, जमीन पर सबसे पहले हाथ किसी गैर का नहीं गया, बल्कि मेरे आका का चचा अबू लहब पत्थर उठाता है और मेरे हुजूर के चेहरा पुर अनवार की तरफ फेंक देता है और अपनी गंदी जुबान से कहता है, तब्बल लका या मोहम्मद अली हाजा जमातन, नाउज़ बिल्लाह, ए मोहम्मद तेरा हाथ टूट जाए, तूने हमें इसलिए बुलाया था कि तू हमें एक खुदा की दावत देने वाला है। मेरे रब ने फरमाया, इसकी गुस्ताखी का जवाब आपने नहीं देना, बल्कि रब्बे कायनात इसकी गुस्ताखी का जवाब देगा। फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, और बदबख्त मेरे हुजूर की गुस्ताखी करने वाले, तू मेरे आका के बारे में बद्दुआ कर रहा है, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। जो मेरा रसूल का गुस्ताख होगा, जब तक क़यामत का सूरज तुलू होता रहेगा, उलमा और खुतबा आते रहेंगे और सूरह लहब की तिलावत करते रहेंगे, गुस्ताखे रसूल पर लानतें बरसती रहेंगी। ये मेरे रब ने साबित किया। और इसने कौन से चेहरा पुर अनवार की तरफ पत्थर फेंका था? जो चेहरा आसमान की तरफ उठ जाता था, रब्बे कायनात आसमान से कहता था, कद नरा तकल्लुब वजही का फिस समा, ए हबीब तेरा चेहरा
जो आसमान की तरफ उठा हुआ ये जमीन पे बाद में जाएगा, रब्बे कायनात जमीन पे किबला पहले तब्दील फरमा देगा। वो आका का चेहरा। और जो तौहीद वाले होते हैं, एक दफा जरा सारे बोलो, जो कौन होते हैं? तौहीद वाले। उनको मुश्किलात आती है, लेकिन अल्लाह तौहीद वालों की लाज रखता है, उनकी इज्जत पर कभी आंच आने देता नहीं। क्या मुझे याद है, मेरे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सहाबिया हजरत जुन्नैरा रजी अल्लाह ताला, अबू जहल ने कहा, जुन्नैरा तूने रब की तौहीद को मान लिया है, तेरी आंखों के अंदर दो सुर्ख की गई सलाखों को फेर दिया जाएगा। जुन्नैरा ने कहा, अबू जहल तो मेरी आंखों के छिन जाने की धमकियां दे रहा है। अगर रब की तौहीद के लिए मेरी रूह को मेरे तन से जुदा कर दिया जाए, मैं रब की तौहीद का इनकार नहीं कर सकती। आंखों के अंदर सुलाखों को फेरा, झुलस कर आंखें जमीन पर गिर पड़ी। और अबू जहल ने कहा, देख तुझे उज़्ज़ा ने आंखें अता की थी, तूने उसकी खुदाई का इनकार किया, उसने तेरी आंखों को छीन लिया है। सैयदा जुन्नैरा ने अपनी झुलसी हुई आंखों वाला चेहरा आसमान की तरफ कर लिया और अर्ज की, अल्लाह आंखें तूने अता की थी, अगर काफिर का मुंह बंद करने के लिए तू जुन्नैरा को दो आंखें अता कर दे, तेरी रबूबियत में क्या फर्क पड़ता है। सैयदा जुन्नैरा की झुलसी हुई आंखों वाला चेहरा अभी आसमान से जमीन की तरफ नहीं आया था, मेरे रब ने अपनी तौहीद की ऐसी लाज रखी कि रब ने सैयदा जुन्नैरा को दो चमकती हुई आंखें पहले अता फरमा दी। जो रब की तौहीद वाला होता है, मेरा अल्लाह उसकी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने देता। तो अगर अमल की कबूलियत चाहते हो तो सारे बोलो फिर अकीदा कौन सा होना चाहिए? तौहीद वाला। और दूसरी, अमल की कबूलियत क्या है? अगर अमल की कबूलियत करवानी है तो फिर हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। सारे बोलो, किसको राजी करने के लिए काम करना है? अल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए। आइए जरा, मेरे रब ने बड़ी अहम बातें कही। फरमाया, कुल ऐ मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ हबीब आप कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरा दुनिया से चले जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सारे के सारे काम मैं किसके लिए करता हूं? अल्लाह के। ये लिल्लाहियत है, मैं अल्लाह के लिए करता हूं। उसके अंदर दिखलावा नहीं आना चाहिए, रियाकारी ना आने पाए। और मुसलमानों, जब हमने नमाज को पढ़ा, रब के सामने क़याम किया और कभी रुकू किया, फिर आखिरकार रब के सामने उम्मीद लगाकर अत्तहियात की हालत में बैठ गए और वहां पर हमने कुछ कलिमात कहे, वो बड़े जानदार कलिमात हैं। हमने अत्तहियात में बैठकर पढ़ा, अत्तहियातु लिल्लाह। ये लफ्ज मैंने आपसे कहलवाने हैं, अत्तहियातु लिल्लाह, ये लिल्लाहियत है। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे सामने ये इकरार कर रहा हूं कि मेरी कौली फेली माली बदली, ये सारी बातें मैं किसके लिए कर रहा हूं? अल्लाह के। और फिर मेरे रब ने मसले को बयान किया। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूं क्योंकि माहौल ही इस तरह का बन गया है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे रब ने ये मसला जरा समझ लेना। अगर अमल के अंदर लिल्लाहियत ना हो, रब की रजा ना हो, ओहद पहाड़ के बराबर भी अमल किया जाए तो उसका अजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अल्लाह की रजा की नीयत हो,
अल्लाह को राजी करना मकसद हो, अगर तू एक जर्रे के बराबर अमल करेगा, मेरा तेरा जो रब है वो इतना तेरे और मेरे ऊपर राजी हो जाएगा। अपनी रजा को देखकर एक जर्रे के बराबर जो अमल होगा, मेरा अल्लाह तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अदा कर देगा। लिल्लाहियत होनी चाहिए। मेरे रब ने क्या फरमाया? इन्ना आतोइना कल कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर। अगले लफ्ज़ जरा गौर करना, फरमाया फसल लीली। मेरे रब ने क्या फरमाया? फसल लीली रब्बी का वनहर। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दिया है। अब आपका काम क्या है? फसल लीली रब्बी का वनहर। नमाज भी अपने रब के लिए पढ़ा कर और कुर्बानी भी अपने रब के नाम के ऊपर दिया कर। नमाज भी सारे बोलो किसके लिए, और कुर्बानी भी किसके लिए? अल्लाह। माशाल्लाह जवेद कसूरी साहब आ गए हैं, मैं अपनी बात खत्म करने लगा। अमल की कबूलियत की तीसरी शर्त क्या है? जो भी अमल किया जाए वो अपने तरीके के मुताबिक ना किया जाए, बल्कि एक इमाम कायनात की सुन्नत के मुताबिक किया जाए। आपके तरीके को अपना। क्यों? मेरे रब ने फरमाया कुल, आ जाए कुल वाली आ रही, कुल ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप कह दीजिए अगर अल्लाह की मोहब्बत के अहल बनना चाहते हो, अगर चाहते हो अल्लाह हमारे साथ प्यार करे, फिर उसका तरीका कार क्या है? फरमाया फत्तबिऊनी, फिर मेरे तरीके पर चलना। अल्लाह जो तेरे हबीब के नक्शे कदम पर चलेगा उसको तू इनाम क्या देगा? मेरे रब ने फरमाया मैं उसको 2 इनाम अता करूंगा। पहला इनाम क्या मिलेगा? फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, जो मेरे रसूल का पैरोकार बन जाएगा, अपनी जलवत के अंदर, अपनी खलवत के अंदर, अपने जाहिर और बातिन के अंदर, अपनी हजामत और लिबास के अंदर, अपनी इमामत और खताबत के अंदर, अपने सफर और हजर के अंदर, अपनी तजारत और दुकानदारी के अंदर जो रसूल के उसवे को अपनाएगा, कायनात वालों, वो अपने रब से प्यार नहीं करेगा बल्कि अर्श वाला रब खुद उससे प्यार फरमाएगा। और फरमाया व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तू अपने सर पर तहामा पहाड़ों जैसे गुनाहों के अंबार लेकर आएगा, लेकिन मेरे रसूल का पैरोकार बन के आएगा। मेरे रब को अपने पैगंबर की पैरवी इतनी पसंद आएगी कि रब्बे कायनात तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जो हबीब का पैरोकार बन जाए, और हमारा ये अकीदा है कि मेरे नबी की जात जैसी कोई जात भी नहीं, और सारे बोलो मेरे आका की बात जैसी किसी की बात हो सकती। और मेरे आका की जात कितनी आला। आइए मैं इस बात को जरूर आज आपके सामने रखना चाहता हूं, और अपने दिल का दर्द रो रहा हूं, और मैं ये अला वजहल बसीरत क्या देना चाहता हूं कि खत्म नबूवत पर कॉन्फ्रेंस को सजाया गया। जावेद कसूरी ने आज मुझे इस बात के लिए यहां पर दावत दी, और मैं इस बात को अला वजहल बसीरत क्या देना चाहता हूं। दुनिया के अंदर कोई किसी सियासतदान का जाला है, कोई फिल्म स्टार का जाला है, कोई इमरान खान का जाला है, कोई नवाज शरीफ का जाला है, कोई बल्लेबाज इमरान खान का जाला है, लेकिन काबे के रब की कसम है ना किसी अदाकार के हम जाले हैं, ना किसी सियासतदान के जाले हैं, ना इमरान खान के जाले हैं, ना नवाज शरीफ के जाले हैं। आज शेखुपुरा में वो जमा हुए हैं जो रब के कुरान के जाले हैं, मोहम्मद की खत्म नबूवत के जाले हैं। और मैं ये बात हुक्मरानों तक पहुंचा देना चाहता हूं, कोई पाकिस्तान के अंदर करतारपुर का बॉर्डर खोलकर मिर्जाइयों को पाकिस्तान तक रसाई देने की बात करे, चाहे कोई आतम मियां को पाकिस्तान के खजाने का मालिक बनाने की कोशिश करे,
काबे के रब की कसम है, जब तक अहले हदीस का और अहलुस सुन्नह का एक फर्जंद भी जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह काली कमली वाले की खत्म नबूवत की जंग लड़ता रहेगा। ऊंची कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। और दुनिया की कोई ताकत इमामे कायनात की खत्म नबूवत पर हमला कर सकती? और मैं नबी की, चाहे कोई मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ाता हूं, मेरी मस्जिद के मुक्तदी मेरे इलाके का एमएलए है, मेरे इलाके का एमपीए है। और जब किसी भी दौर के अंदर काली कमली वाले की खत्म नबूवत पर नकब लगाई गई, मैंने कभी सियासतदानों का चेहरा नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का बरसरे बेकार मिंबर पे ऐलान करता रहा, और कोई मुसैलमा कज़्ज़ाब की सूरत में उठे, कोई असवद अनसी की शक्ल में उठे, कोई गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में उठे, और कोई फिरौन मस्जिद के हुजरे से उठे, या ईवाने बाला से उठे, ईवाने ज़ेरी से उठे, इंशाअल्लाह जो काली कमली वाले की खत्म नबूवत पे हमला करेगा, इंशाअल्लाह उनको रोका जाएगा, इंशाअल्लाह उसको टोका जाएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र महसूस कर रहा हूं कि मेरे इलाके के अंदर मिर्जाइयत की एक खेप जिस जगह पर मौजूद है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से वहां पर मरकज बना रहा हूं। और मैं मरकज बनाने का मेरा मकसद यही है कि अल्लाह मैं जब तक जिंदा रहूं, मैं तेरी तौहीद का रखवाला बन के जिंदा रहूं, और अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं काली कमली वाले की चौकस की चौकीदारी करता रहूंगा। और मेरे आका, कौन मेरे आका, अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके आने लगा। एक दफा मेरे आका के पास दो फरिश्ते आए। यार जरा सारे बोलो, कितने फरिश्ते आए? दो फरिश्ते आए। अगर उन्होंने जमीन और आसमान के दरमियान में तराजू लगा दिया, एक कहने लगा हुआ हुआ, क्या ये वही है? उसने कहा नाम हुआ हुआ, हाँ ये वही है। मेरे आका ने फरमाया, और मैं किस नबी को आखिरी नबी मानता हूं? फरमाया एक तराजू में मुझे बैठाया गया, और दूसरे पलड़े में 10 आदमियों को बैठाया गया। मेरे नबी का पलड़ा भारी था। फिर 100 आदमियों को बैठाया गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी था। फिर 1000 आदमियों को बैठाया गया, मेरे आका का पलड़ा भारी था। वो फरिश्ता जो आसमान पे बैठा हुआ वो पुकार उठा, और किस नबी के मुकाम मनसब की बात कर रहे हो? अगर एक पलड़े के अंदर काली कमली वाले को बैठा दिया जाए, और दूसरे पलड़े के अंदर सारी कायनात को बैठा दिया जाए, सारी कायनात वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, और इमाम कायनात वाला पलड़ा सबसे भारी हो जाएगा। और मेरे आका की क्या शान है, मेरे आका की। और वो था जब वो चलता था तो जिब्रील उसकी रुकाब थामता था। और वो था जिसने मस्जिद नबवी के अंदर जिस जगह पे थोड़ी देर लेट के आराम किया था, रब ने उसको रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना दिया था। और वो थे जिसने कब्रिस्तान में खड़े होकर दुआ मांगी थी, रब्बे कायनात ने उसको जन्नतुल बकी बना दिया था। और मेरे आका कौन है? जो उनकी कुर्बत में आया। और ये बात भी सुन ले, हमारी तारीख अल्लाह के फजलो करम से इस बात की जामिन, इस बात की गवाह है कि हमने हर दौर के अंदर अगर जंग लड़ी है तो या रब की तौहीद की लड़ी है या मदीने वाली सरकार की लड़ी है, ये हमने। और आज जब मैं लाहौर से आ रहा था, किला लक्ष्मण सिंह से हम गुजरे, भाई रहमतुल्लाह शाकिर भी साथ थे।
میں نے کہا یہ وہ قلعہ لچمن سنگھ اور فوارہ چوک ہے جہاں پر شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو بم کے دھماکوں میں اڑا دیا گیا تھا. حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. میں نے وہاں پر یہ بات کہی رحمت اللہ بھائی آج انہی تاریخوں کو پلٹانے کی ضرورت ہے کہ اس بات کا تہیہ کیا جائے جو میرے آقا کی ختم نبوت پر اپنی زبان سے حملہ کرے گا اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا، اور جو ہاتھ آقا کی ختم نبوت کے خلاف لکھے گا اس ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا، اور جو قدم آقا کی ختم نبوت کے خلاف اٹھے گا انشاءاللہ اس قدم کو روک دیا جائے گا. اور میں یہ بات کہنے لگا تھا اگر عمل کے اندر امام کائنات کی پیروی نہ کی جائے تو سارے بولو وہ عمل قبول ہو سکتا نہیں ہو. میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوں اپنے آج کے اس موضوع کو اقبال کے اس شعر کے اندر پرو دینا چاہتا ہوں. اقبال نے کہا تھا جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر وآخر دعوانا ان الحمدللہ.